Hello student, welcome to the Arihantam Academy YouTube channel. So student, today we will talk about the rate of reaction in terms of rate law. And I hope you are going through the last lectures that we have already discussed the rate of reaction in terms of change in concentration with respect to time. And there we have already discussed the rate of reactions average and the instantaneous rate of reactions. In both cases you have seen the difference in the concentration always differ with respect to time functions. तो एवरेज टाइम ऑफ रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने एवरेज टाइम इंटरवल देखा था, एवरेज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखा था, दैट मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंस्टेंटेनियस रेट वेयर द डिफरेंस ऑफ टाइम इज लिमिट टू 0. ना उसी रेट ऑफ रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन इक्वलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कि if you have given reactions with respect to reactant, then how you will find the rate of reaction in terms of product. So we have to understand the equalization of rate of reaction. So we need to understand for equalization of rate of reaction. Equalization of rate of reaction. For equalization of rate of reaction. Now, for that purpose, we have seen that a type of general reactions like A moles of A reacts with B moles of B, then C moles of C plus D moles of D is obtained. So this is your reactant and this is your product. So this is your reactant and this is your product. So in here we have seen that A and B is your reactant mixture, C and D is your product mixture. So all these two are the combinations of reaction coordinate. क्योंकि reaction coordinate में reactant भी होता है और product भी होता है. Now, if rate of A we have to decide, then we need to identify the change in concentration of A, change in concentration of B, and we have seen in terms of reactant, concentration always decreases, and in terms of product we have seen that concentration is always increases with respect to time. तो टाइम के साथ इसका concentration increase हो रहा था जबकि reactant के लिए decrease हो रहा था. And you have seen डिक्रीज के लिए हम लोगों ने एक टर्म्स यूज किया था नेगेटिव और इंक्रीज के लिए हम लोगों ने एक टर्म्स यूज किया था एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. तो चेंज, इफ द चेंज विल बी पॉजिटिव then this is the rate of reaction in terms of product. If the change will be negative, then this is the rate of reaction in terms of reactant. So these two are reactant and these two are product. So change in concentration of A can be written as the change in concentration of A. So the change in concentration of A can be written as the difference in minus dA. आप ऐसे समझ लो ना, देखो ऐसे मान के चलते हैं, एक पहले समझा देता हूँ फिर हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं. लेट अस से दैट कि आपके पास रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट A है, A is your reactant and T, that means time is equal to 0 सेकेंड पर इसका concentration A1 है and time is equal to t सेकेंड पर इसका concentration A2 है. तो change in concentration क्या हो सकता है? The change in concentration we can write A2 minus A1 is equal to minus delta A. And if this delta A can be considered as change in concentration of A respectively, we can write similarly we can write the change in concentration of B is equal to B2 minus B1 is equal to minus delta. Change in concentration of product, this is your product. So similarly change in concentration of C is also equal to C2 minus C1 is equal to plus delta C because it is your product. And D के लिए आप लिख सकते हैं change in concentration of D, D2 minus D1 is equal to plus delta D. And here the change in time is equal to T2 minus T1 is equal to delta T. So with respect to delta T time change, क्योंकि रिएक्शन एक साथ जितने टाइम में रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतने देर तक ये डिकम्पोज हो रहा है, उतने देर तक ये अपीयर हो रहा है, यानी ये डिसअपीयर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है. सो विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम ऑफ इंटरवल रिएक्टेंट इज डिसअपीयरिंग एंड प्रोडक्ट इज अपीयरिंग. तो रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट के रेट को हम टाइम के साथ डिफाइन कर सकते हैं. देन ए के लिए क्या आ जाएगा?
rate of A is equal to minus delta A by delta T. Rate of B is equal to minus delta B by delta T. Rate of C is equal to plus delta C by delta T. And the rate of D is equal to plus delta D by delta T. So this is change in concentration of A with respect to time, change in concentration of B with respect to time, change of concentration of C with respect to time, change of concentration of D with respect to time. So change in concentration with respect to time will determine rate of reaction. Now how we have to equalize all of them? This depends upon the stoichiometric calculation, या number of moles you have taken, या number of moles by which rate of reaction is proceeding. तो यहाँ पर अगर A मोल्स है, अगर ये B मोल्स है, तो कहने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं, जितने टाइम में A मोल डिसअपीयर हो रहा है उतने टाइम में इसका C मोल अपीयर हो रहा है, फिर जितने टाइम में B का रिएक्टेंट का मोल डिसअपीयर हो रहा है उतने ही टाइम में C और D अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, स्पीड देखना हमें कि कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना हो रहा है, राइट ना। विथ रिस्पेक्ट टू दैट A के लिए यहाँ पर देखिए, A के लिए A मोल है, then it can be of 1 by A fraction. B के लिए B मोल है, then we can write it 1 by B fraction. C के लिए C मोल है, 1 by C fraction. D के लिए D मोल है तो 1 by D fraction. यानी इस रेट से ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर ऐसा कुछ बोला जाए कि A 1 by A फ्रैक्शन से रिएक्ट कर रहा है, B 1 by B फ्रैक्शन से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर रिएक्ट कर रहा है तो हमें उसके स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यानी यहां से देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके तरीके में, यानी वी कैन राइट कि इक्वल अगर करना हो तो फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन राइट ए के लिए देखिए माइनस साइन है तो माइनस 1 बाय ए डेल्टा ए बाय डेल्टा इज इक्वल टू बी रिएक्टेंट है, माइनस साइन है, माइनस 1 बाय बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू सी के लिए देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा 1 बाय सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। प्रोडक्ट है अगेन डी, डी प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा इज इक्वल टू 1 बाय डी चेंज इन डी बाय डेल्टा टी। और ये दिस विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट को अगर आपको इक्वेट करना पड़ेगा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय बी डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाय सी डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाय डी डी d by dt. So this is the instantaneous rate of reaction. This is your sorry बेटा यहाँ पे small d होगा, right now. So this is your instantaneous rate of reaction. This is your average rate of reaction. And by dividing from their stoichiometric calculation, we can equalize all the mole of reaction. Clear यहाँ तक? Okay. So please have a look. अब देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग, राइट ना। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। जैसे आपके पास था A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, देन वी गेट C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट। और रेट को आपने इक्वलाइज किया, रेट इज इक्वल टू आगे आपके पास माइनस 1 बाय A डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1 बाय B डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1 बाय C delta C by delta T is equal to 1 by D times delta D by delta T। अब इसका क्या मतलब होता है आप एक किसी दूसरे से रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर इन दोनों का रिलेशन देखना चाहे तो इन दोनों के रिलेशन से हमें क्या समझ में आएगा, माइनस 1 बाय A टाइम्स रेट ऑफ A इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा माइनस 1 बाय B टाइम्स रेट ऑफ B। यानी अगर आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ A कितना ज्यादा तेज है या कितना ज्यादा स्लो है बी के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए ए को उधर भेज दीजिए। देन क्या आ जाएगा देखिए आपके पास रेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस ए बाय बी टाइम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ बी।
अगर आपको ये पूछता है कि रेट ऑफ बी ए से कितना ज्यादा है तो बी को इधर भेज दिया, देन क्या जाएगा माइनस बी बाय ए टाइम्स रेट ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ बी। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने फ्रैक्शन से रेट ऑफ ए चल रहा है उसके इस फ्रैक्शन से रेट ऑफ बी चल रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ ए इज ए बाय बी टाइम्स ग्रेटर देन और लेस देन द रेट ऑफ बी। और इसका मतलब क्या हो सकता है दैट रेट ऑफ बी इज बी टाइम्स बी बाय ए टाइम्स ग्रेटर और लेस देन रेट ऑफ बी। ये तो डिपेंड कर रही है ना कि ए बाय बी ग्रेटर है तो रेट ऑफ ए ग्रेटर होगा, ए बाय बी स्मॉलर होगा तो रेट ऑफ ए स्मॉलर होगा। सो ग्रेटर और स्मॉलर कैन डिफाइन बाय द रेशियो ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट, और अगर मान लीजिए हम लोग इन दोनों के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें, सी और डी के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 1 by c of rate of c is equal to 1 by d of rate of d, राइट ना। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ c is equal to rate of c is equal to c, इस c को इधर भेज दें then c by d times greater than or smaller than rate of d। अगर d का रिलेशन c से फाइंड आउट करना चाहते हैं d आप इधर भेज दें, इस d को इधर भेज दें then d by c times greater or smaller than the rate of c is equal to rate of d। So we can compare reactant to reactant, product to product, and we can also compare reactant to the product। कि जैसे मान लो क्या a और c का रिलेशन पूछना हो या a और d का रिलेशन पूछना हो तो a और c के साथ इक्वेट कर सकते हैं, a और d के साथ। अब देखिए a और c के साथ अगर हमें देखना होगा तब क्या लिख सकते हैं, जस्ट मिनट, जब a और c के साथ आपको देखना होगा देन देखिए यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पर फिर से a एंड c के साथ देखना होगा तब क्या हो सकता है a एंड c। देखिए यहाँ पर -1 by a, यहाँ पर रेट ऑफ a इज इक्वल टू प्रोडक्ट है यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1 by c रेट ऑफ c। अब यानी क्या यहाँ पर है कि a by a फ्रैक्शन से जो रेट होगा a का वो 1 by c फ्रैक्शन ऑफ रेट c के साथ इक्वल है। तो रेट ऑफ a और रेट ऑफ c का कितना कंपैरिजन होगा तो a को उधर भेज दीजिए देन क्या आ जाएगा रेट ऑफ a माइनस रेट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस a by c टाइम्स रेट ऑफ c। दैट मींस ये डिसअपीयरेंस का रेट है और ये अपीयरेंस का रेट है। c को a के साथ कंपेयर करना है देन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए रेट ऑफ c को इधर भेज दीजिए इज इक्वल टू माइनस c टाइम्स a ऑफ रेट ऑफ a। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डेल्टा b बाय डेल्टा t है, अगर यहाँ पर ध्यान दें देखिए -1 by b रेट of b is equal to 1 by d of rate of d। अब इस तरीके से अगर b का रेट d के टर्म्स में आइडेंटिफाई करना b को इधर भेज दीजिए देन क्या आ जाएगा disappearance of rate of b is equal to b by d times greater or smaller than rate of appearance of d। अगर d को a के साथ d के साथ कंपेयर करना है d को इधर भेज दीजिए माइनस db टाइम्स रेट ऑफ disappearance of b is equal to rate of appearance of d। तो इस तरीके से हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से उस रेट ऑफ रिएक्शंस को डिवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शंस को इक्वलाइज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके, अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज प्रोसीड। ये आपका अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन। सो अमोनिया undergoes thermal decomposition to produce dinitrogen and 3 moles of nitrogen when 2 moles of ammonia is decomposed। Now question ये करता है कि if the rate of disappearance of ammonia is 1.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, then find the rate of appearance of N2 and H2। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेट पूछ रहा है, रिएक्टेंट का रेट गिवन है, प्रोडक्ट का रेट पूछ रहा है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस वाला जो अभी हमने इक्वलाइजेशन मेथड पढ़ा था उस पर ध्यान देना होगा। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, रिएक्शन देखिए क्या कर रहा है, NH3 है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ अमोनिया NH3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/2 टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम।
ओके गुड। यहाँ पर देखिए N2 के साथ अगर उसको इक्वल कर सकते हैं देन इक्वल, यहाँ पर 1 मोल C है इक्वल प्लस 1/1 टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय डेल्टा T। समझ गया? यहाँ पर 3 मोल्स है, 3 से डिवाइड करेंगे देन क्या आएगा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। इसी इक्वेशंस को समझते हुए बनाना है। तो एक बार N2 को फाइंड आउट करना है तो N2 NH3 और N2 का कंपेयर करेंगे, एक बार H2 का फाइंड आउट करना होगा तो NH3 और H2 का कंपेयर करेंगे। तो पहले N2 का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, रेट ऑफ N2। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ N2 का रेट क्या कहता है, तो डाई नाइट्रोजन का रेट का कंपैरिजन करते हैं। कितना लिखे -1/2 रेट ऑफ NH3 is equal to 1/1 of rate of N2। ओके तो 2 को इधर भेज दीजिए देन क्या करेगा रेट ऑफ NH3 is equal to, सॉरी आपको N2 का चाहिए राइट ना, तो N2 का चाहिए तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट आपने करना कुछ नहीं है, रेट ऑफ NH3 कितना गिवन है आपके पास, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 गिवन है आपके पास, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, सो 1.2 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ N2। अब ध्यान दे देखिए क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 टाइम्स राइट ना, सो इट विल बी द 6 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये है आपके पास, ये 0.6 into 10 to the power -4 लिख सकते हैं। दिस इज द योर रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ N2। अब H2 का फाइंड आउट करना है तो H2 का इसके साथ कंपेयर कीजिए राइट ना, जब H2 और N2 को इसके साथ कंपेयर करते हैं देन याद कीजिए हम -1/2 टाइम्स रेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स रेट ऑफ H2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन है, आपको हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन चाहिए, 3 को इधर भेज दीजिए देन क्या आता है -3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ NH3। तो रेट ऑफ NH3 कितना बेटा देखो, रेट ऑफ NH3 आपका है 1.2 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ H2। अब ध्यान दीजिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.6 हो जाएगा, 6 × 18 1.8 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज योर रेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वलाइज करके किसी अननोन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान चीज है। अगर आप कनेक्टेड रहते हैं आई प्रॉमिस यू यू विल बी द बेस्ट स्कोरर ऑफ केमिस्ट्री इन योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन राइट ना। सो बी कंटिन्यू थ्रू द ऐप or even you can be continue with the YouTube channel where you feel free, you can contact me very easily right now. Okay, so please go through this. Okay, तो अब next topic है rate law right now. So we can find the rate of reaction on the basis of rate law. Rate law is a law given by the Goldberg in terms of concentration। तो पहले चीजें समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 2 चीजें समझना है यहाँ पर। There are 2 type of mass can be used during the chemical reaction. That one mass is called actual mass and the other mass is called active mass। तो 2 टाइप के मास होते हैं, उस चीज को हम लोग समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर 2 टाइप का मास होता है ठीक है। तो एक मास आपका होता है एक्चुअल मास, दैट मीन्स द मास of reactant, the mass of reactant is used during chemical reaction, is used during chemical reaction, during chemical reaction। तो जितना मास आपने लिया है रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए वो मास आपका एक्चुअल मास होता है। दूसरा चीज समझिए यहाँ पर एक्टिव मास, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास कहने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसे देंगे द मास of reactant, the mass of reactant from actual mass, from actual mass which undergoes chemical changes, which undergoes chemical changes
to produce product is called एक्टिव मास, यानी कि जो आपका रेट को डिफाइन कर सकता है। जैसे मास तो आप किसी केमिकल रिएजेंट का 1010 भी ले सकते हैं, बट अगर उसका जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मास 1 ग्राम है तो रेट को तो 1 ग्राम डिफाइन करेगा, राइट ना, कि रेट कितना स्पीड चलेगा। अगर 10 ग्राम पर सेकेंड टूट रहा है तो 10 ग्राम डिफाइन करेगा, 100 ग्राम पर सेकेंड टूट रहा है तो 100 ग्राम डिफाइन करेगा। सो द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इज एबल टू डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला चीज क्लियर हो गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिव मास रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकता है। दैट मींस एक्टिव मास डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एक्टिव मास है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, अब अगर आपने एक्चुअल मास को और एक्टिव मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो जैसे मान लेते हैं एक्चुअल मास है आपके पास WA और एक्टिव मास है आपके पास WA, तो एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव Na, WA डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव Na। ये आपका एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपका एक्टिव नंबर ऑफ मोल्स है। सो दिस इज योर एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअल number of moles, and this is your active number of moles, now actual number of moles को volume of solution से divide कर दीजिए, then Na by V in liter is called actual molar concentration, और यहां से देखिए Na divided by volume in liter is called active molar concentration। अब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव मास इज दैट मास और एक्टिव मोलर concentration is that number of moles per unit liter of solution which undergoes chemical changes and which determine the rate of reaction is called active molar concentration, active mass in action। बहुत सारे नाम से आप इसको लिख सकते हैं, राइट ना। तो फिर से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट सॉल्यूशन या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर undergoes chemical changes which define the rate of reaction is called your active molar concentration, is called mass in action। तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मास समझ में आ गया होगा तो आपको नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया होगा तो आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर या वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर से डिफाइन करते हैं। यू विल गेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। ओके, अब इसके बेसिस पर देखिए, ध्यान देते हैं, यानी कि कौन कौन सा नाम हम लोग लिख सकते हैं। यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है हमें। एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही हम बोल सकते हैं मास इन एक्शन। वो क्या बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास या मास इन एक्शन। तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिए एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास या फिर मास इन एक्शन। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहां पर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, by which reactant undergoes chemical reactions, which determine the rate of reaction, right now. So which determine rate of reaction is called active molar concentration, or mass in action, ठीक है। आई होप बढ़िया होगा, बेहतर होगा, समझ में आ गया आपको, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं यार, देखो मास तो कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन जितना कंज्यूम होगा केमिकल रिएक्शंस में टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट को तो वही डिटरमाइन करेगा ना।
पूरा पृथ्वी मास का बना हुआ, तो क्या सडनली पूरा पृथ्वी बना था? इट टेक्स टाइम टू इवॉल्व इन होल अर्थ, ठीक है ना। पहले गैसियस फॉर्मेट में था, धीरे धीरे टाइम के साथ कंडेंस्ड हुआ, फिजिकल चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस हुए, ठीक है ना। एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को कोलाइड किया होगा, बहुत सारे सेवरल केमिकल स्टेप्स के बाद पूरा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्चुअल मास तो पहले था, लेकिन एक्चुअल कितना था वो टाइम के साथ डिटरमाइन होता है। वो किसके साथ डिटरमाइन होता है? टाइम के साथ। जो आपका रेट को या स्पीड ऑफ रिएक्शंस को, हाउ रिएक्शन इज फास्ट, हाउ रिएक्शन इज स्लो को डिफाइन करता है, दैट मास, दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी द एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मास इन एक्शन। इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मास रेट लॉ क्या था उस चीज को समझ लेते हैं। ओके, आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे, है ना। एंड टेक हेल्दी फूड, स्टे सेफ, ये सारी बातें याद रखिए। और बीमारी बहुत डेंजरस है, छोटा मोटा चीज है नहीं, तो प्लीज कोऑपरेट विथ अस, कोऑपरेट विथ सोसाइटी, कोऑपरेट विथ गवर्नमेंट, तभी जाकर के ये खत्म होने वाला है। तो बिना मतलब का बाहर ना निकलें, है ना। और बने रहें क्लास के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू। आई विल बी ट्राई टू बी कंटिन्यू, एंड एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही हम लोग एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था, आज भी बिना मतलब का, जब छुट्टी दे रखा हुआ है फिर भी बच्चे रोड पर भटकते हैं। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। सो प्लीज़, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्लास देन स्टे सेफ। आपके पास नेट है, प्रॉपर नेट होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नेट नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी के टाइम पर आपका जो इंटरनेट होना चाहिए, दैट मस्ट बी अवेलेबल फॉर स्टडी ऑनली, राइट ना, क्योंकि सरकार आपको कुछ नहीं देने वाला है। गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, समझ के। सो यू हैव टू फाइट एंड ओनली यू आर द सोल्जर ऑफ दिस डिजीज। तो आपको फाइट करना है, सोसाइटी से दूर रहना है, दूसरे से भी दूर रहना, अभी खुद को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। समझ में आया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, रेट लॉ और मास एक्शन को समझते हैं। तो देखिए, रेट लॉ और मास एक्शन, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गुलबर्ग ने क्या, प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग, राइट ना, प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग, प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग। गुलबर्ग ने इनको प्रपोज किया था। दिस लॉ इज गिवन बाय द गुलबर्ग, राइट। तो गुलबर्ग ने क्या कहा, ये समझिए। फॉर जनरल रिएक्शन, आपके पास अगर कोई जनरल रिएक्शन है, फॉर जनरल रिएक्शन, फॉर जनरल रिएक्शंस, इफ यू हैव एक्टिव मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, या मान लीजिए एक्चुअल, एंड देन वी गेट प्रोडक्ट। ये है आपका एक्चुअल रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल नीचे लिखता हूं, एक्सपेरिमेंटल कैसे चल रहा है, राइट। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, सो एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस में अगर हमने बोला x मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद y मोल्स ऑफ B एंड देन वी गेट प्रोडक्ट। तो आप खुद बताइए, रेट को A मोल्स डिफाइन करा या x मोल? x मोल, क्योंकि एक्टिव ये है, एक्सपेरिमेंट में जो आया वो एक्टिव है, यानी ये कैसा है, मास इन एक्शन। ये क्या है आपके पास, मास इन एक्शन। तो जितना मास आपके एक्शन में है वही रेट को डिटरमाइन करेगा। तो x मास इन एक्शन, y मास ऑफ B इन एक्शन, x mass of A in action, y mass of B in action, then rate of A from the Guilbert law, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए कि from Guilbert क्या है, law of mass action। So according to this law, rate of reaction is directly proportional to the, right now, so the rate of reaction is directly proportional to the product of, product मतलब यहाँ पर मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, राइट ना। सो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रेट
experimental to raise power of experimental stoichiometric calculation, experimental stoichiometric कैलकुलेशन, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस लॉ। सो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मींस बेटा ध्यान दे रहे हैं यहां पर से, दैट मींस वी कैन राइट रेट of A directly proportional to the active molar concentration of A to the power x. Rate of B is directly proportional to the active of B to the power y, A to the power x, B to the power y. Then rate of A to B is directly proportional to the A to the power x into B to the power y. अब ध्यान ये देखिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल of molar concentration of each reactant raising its power as experimental stoichiometric. तो experimental stoichiometric कितना है, x है और y है, इसलिए a पर पावर x, b पर पावर y. Then यहाँ से देखिए rate is equal to k या rate of a to b, that means rate of a to b is equal to, यहाँ से प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो एक स्पीड कांस्टेंट लगाएंगे k into a to the power x into b to the power y. क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिए, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, k क्या है यहाँ पर, k is your speed constant, k is your speed constant, k is also called rate constant. k को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं, k को हम लोग रेट कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, k को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर द कांस्टेंट, राइट ना. अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a to the power x, तो ये हो गया एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. अगर हम लोग लिखते हैं b to the power y, देन क्या हो गया इसका मतलब, एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को समझ सकते हैं कि A क्या है, B क्या है, पावर x क्या है. अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, आपके पास यहाँ पर आगे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, x पावर है, y पावर है, so this is called delta n and the delta n is equal to x plus y and this delta n is called order of reaction. तो एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे. क्लियर था? दिस इज योर लॉ ऑफ मासेस. ओके, तो देखें, गो थ्रू दिस.